So, good morning and let's start the class. लास्ट लेक्चर में मैं एक एग्जाम्पल बता रहा था, तो आज इसको एग्जाम्पल को हम जितनी जल्दी हो सके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि जिससे हमारा 1 घंटे के अंदर अंदर ये लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। इन द लास्ट class we have discussed about a maximization problem of simplex method. So the problem is given here that solve the LP problem max z equal to 3x1 plus 5x2 plus 4x3 and subject to constants are 2x1 plus 3x2 less than equal to 8. Second constant 2x2 plus 5x3 less than equal to 10. Next constant 3x1 plus 2x2 plus 4x3 less than equal to 15. And the non-negativity constants are x1, x2, x3 are greater than equal to 0. So according to our procedure to solve the simplex method, first of all we have to formulate the problem in standard form. But here the problem is already given in standard form, so we will introduce the slack variable in the subject to constant. तो देखिए हमारे पास जो प्रॉब्लम दी हुई है उसमें से देयर इज 3 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। ठीक, in all these 3 subject to constant we will introduce 3 slack variable, that is s1, s2 and s3. In the last lecture I told you that when we remove the inequality from the subject to constant, the inequality equation will become inequality equation. ठीक, जब हमने लास्ट क्लास में बताया था कि जब हम इनइक्वलिटी इक्वेशन को, यहाँ पर ये इनइक्वलिटी इक्वेशन है लेस देन इक्वल टू का, इसको रिमूव करेंगे तो दिस विल बिकम इक्वेशन. सो आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द स्लैक वेरिएबल इन द सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, they will become what? This 2x1 plus 3x2 plus s1 equal to 8, 2x2 plus 5x3 plus s2 equal to 10, 3x1 plus 2x2 plus 4x3 plus s3 equal to 15. In the first subject to constant, we have introduced first slack variable, that is s1. In the second, s2, and in the third constant, we have introduced third slack variable, that is s3. After introducing these will become in equation this. Okay? Now all these slack variables in the objective function, we will introduce these slack variables with zero coefficient. जो ये स्लैक वेरिएबल हैं उनको हम जीरो कोफिशिएंट के साथ जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे. ठीक, तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 3x1 plus 5x2 plus 4x3. Now by the introducing slack variable with zero coefficient, what will it become? This will become 3x1 plus 5x2 plus 4x3 plus 0s1 plus 0s2 plus 0s3. अब देखिएगा, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा. हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था दैट वाज 3x1 plus 5x2 plus 4x3. इसमें से इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये जो हमारे पास सब्जेक्टिव कांस्टेंट है इनमें से जो स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं, इनमें जो हम स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं वो स्लैक वेरिएबल जीरो कोफिशिएंट के साथ हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड करते हैं. देखिएगा हमारे पास हमने जो सब्जेक्टिव कांस्टेंट थे उनमें s1, s2 और s3 ये स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए थे, तो इनको जीरो कोफिशिएंट के साथ हम इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इंट्रोड्यूस करेंगे. तो व्हाट विल बिकम दिस 3x1 plus 5x2 plus 4x3 plus 0s1 plus 0s2 plus 0s3. तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, we will form a simplex table. अब हम एक सिंप्लेक्स टेबल को फ्रेम करना चालू करते हैं. कैसे? सबसे पहले तो आप एक कॉलम बनाएंगे जिसमें लिखेंगे बेसिक वेरिएबल. ठीक, ये फर्स्ट कॉलम दैट हैव बेसिक वेरिएबल्स. एंड व्हाट आर दीज बेसिक वेरिएबल्स? जो हम स्लैक वेरिएबल्स, those slack variables we have introduced in our constant, these will come in the column of basic variables.
जो हमने स्लैक वेरिएबल उसमें इंट्रोड्यूस किए हैं वो बेसिक वेरिएबल वाले कॉलम में आएंगे। So we have introduced three slack variable s1, s2, s3. So we will write down here in the basic variable column s1, s2 and s3. यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने सेलेक्ट किया, दैट इज s1, s2, s3। ये बेसिक वेरिएबल वाले कॉलम में आ गया। ठीक, नाउ इन द सेकेंड कॉलम CB, coefficient of basic variable. The coefficient of basic variable from where? From the objective function. जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उससे हमें जो बेसिक वेरिएबल या स्लैक वेरिएबल जो हमने इंट्रोड्यूस किए तो उसके कॉफिशिएंट यहाँ पर लिखते हैं। तो कॉफिशिएंट यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में s1 का कॉफिशिएंट 0, s2 का कॉफिशिएंट 0, s3 का कॉफिशिएंट 0। तो वी विल पुट डाउन हियर coefficient of basic variable 0, 0, 0. Now we will now put the value of our constants. जो xb is called value of constants. वैल्यू ऑफ कांस्टेंट क्या है? जो हमारे पास सब्जेक्टिव कांस्टेंट है उनके इक्वल टू के राइट साइड में जो वैल्यू होती है वो हम सब्जेक्टिव कांस्टेंट थे, उनमें से उनके राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है दैट इज 8, 10 एंड 15, वो हम XB के कॉलम में रखेंगे। तो हमने यहां पर रख दिया है 8, 10 एंड 15। अगेन फिर अगला कॉलम है X1। X1 हमारे पास जो कॉफिशिएंट है वो जो तीनों सब्जेक्टिव कांस्टेंट है उनमें X1 का कॉफिशिएंट, जो हमारे पास तीन सब्जेक्टिव कांस्टेंट है उनमें से X1 का कॉफिशिएंट। देखिए पहले में X1 का कॉफिशिएंट 2, इन द सेकंड कांस्टेंट देयर इज नो X1, दूसरे कांस्टेंट में X1 नहीं है, तो इट मींस द कोएफिशिएंट ऑफ X1 इन सेकंड कांस्टेंट दैट इज 0। ठीक, एंड इन द थर्ड कांस्टेंट द कोएफिशिएंट ऑफ X1 इज 3। तो 2, 0, 3। तो हम जो नेक्स्ट कॉलम है X1 वाला उसमें X1 के कोएफिशिएंट लेंगे 2, 0, 3। फिर नेक्स्ट कॉलम X2। अब इस कॉलम में हम X2 के कोएफिशिएंट रखेंगे फ्रॉम द ऑल दीज थ्री कांस्टेंट। तो हम तीनों जो कांस्टेंट है उससे X2 का कोएफिशिएंट रखेंगे। तो पहले कांस्टेंट में X2 का कोएफिशिएंट 3, दूसरे में 2 और तीसरे में भी 2। तो हमने ये यहाँ पर टेबल में पुट कर दिया 3, 2, 2। Now in X3 column we will put the coefficient of X3 from all three constants. So here there is no term of X3 in first constant. पहले वाले में X3 को कांस्टेंट नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0। फिर दूसरे वाले में X3 का कोफिशिएंट 5 और तीसरे वाले में 4। तो हम टेबल में देखेंगे पहले वाले में 0, दूसरे वाले में 5 और तीसरे वाले में 4। ठीक, अब कोफिशिएंट ऑफ S1 इन द फर्स्ट कांस्टेंट, coefficient of S1 is 0 and there is no S2 and S3, so coefficient of S2 and S3 will become 0। ठीक, तो S1 वाले कॉलम में S1 का कोफिशिएंट है केवल, वो हमने 1 लिख दिया, बाकी के दोनों 0 है। सिमिलरली इन द सेकंड कांस्टेंट द कोफिशिएंट ऑफ S2 is 1 but there is no S1 and S3, so coefficient of S1 and S3 will become 0। and in the third constant coefficient of S3 is 0 and there is no S1 and S2, so coefficient of S1 and S2 will become 0। तो in the table, तो हमने टेबल में देखिए पहले वाले में से क्या लिख दिया 1, 0, 0, दूसरे वाले में से 0, 1, 0, तीसरे वाले में से 0, 0, 1। ये हमने सब्जेक्टिव कांस्टेंट के हिसाब से अपने कोफिशिएंट हमने लिख दिए। इतनी टेबल बनाने के बाद हमारे पास कितना, ये सारे हमने वेरिएबल लिख लिए और उनके कोफिशिएंट लिख लिए। अब जो हमारे पास ऊपर लिखा है CJ, यहाँ पर हम XB वाले कॉलम, ये CJ चाहे आप CB वाले कॉलम में लिख लीजिए चाहे XB वाले कॉलम में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर CJ लिख लीजिए। ठीक, CJ, व्हाट इज CJ? CJ इज द कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके कोफिशिएंट है। तो देखिए हमने ये जितने भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन थे उसके कोफिशिएंट हमने यहाँ पर लिखे, देखिए X1, X2,
x3, s1, s2 एंड s3। ठीक, यहाँ पर आप x4, x5, x6 भी ले सकते हैं, या आप अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 इस तरह से कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं। तो चूंकि हमने पीछे प्रोसेस में सिलेक्ट वेरिएबल s बताया था, तो हमने यहाँ पर s1 ही ले रहे हैं। नाउ कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यहाँ x1 का कोफिशिएंट 3, ये देखिए 3 है x1 का, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 3। फिर x2 का कोफिशिएंट यहाँ पर 5, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5। फिर x3 का कोफिशिएंट यहाँ पर 4, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये देखिए 4। ठीक, फिर s1 का कोफिशिएंट 0, s2 का कोफिशिएंट 0, s3 का कोफिशिएंट 0। इतनी चीजें हमने टेबल में लिख लिया। अब इतना लिखने के बाद आफ्टर मेकिंग दिस टेबल व्हाट वी विल डू नाउ, ठीक, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ zj। zj की वैल्यू निकालनी है। zj की वैल्यू कैसे आएगी, जो कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल है, ठीक, जैसे ये वाला मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, ये इसमें से इसके करस्पॉन्डिंग जितने भी कॉलम हैं, कौन कौन से कॉलम हैं, xb का, x1 का, x2, x3, s1, s2, s3, ये कॉलम है। इनके कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं, उनके एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करके उनका सम, जैसे हम इस वाले के लिए देख रहे हैं, तो हमारे पास अगर हम ये देखें, ये 2 कॉलम का, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 × 8 प्लस 0 × 10 प्लस 0 × 15 प्लस इन तीनों का सम, तो 0 × 8 प्लस 0 × 10 प्लस 0 × 15, तो इसका सम आएगा 0। तो ये देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है 0। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पर x1 बने 2 × 0 प्लस 0 × 0 प्लस 3 × 0, तो दिस विल बिकम 0। 3 × 0, 2 × 0, 2 × 0, 0। ये देखिए नीचे मैंने इसको सॉल्व किया है। zj की वैल्यू पहले कॉलम में 8 × 0 प्लस 10 × 0 प्लस 15 × 0, 0। सेकेंड कॉलम 2 × 0 प्लस 0 × 0 प्लस 3 × 0, 0। थर्ड कॉलम 3 × 0 प्लस 2 × 0 प्लस 2 × 0, दैट इज 0। फोर्थ कॉलम 0 × 0 प्लस 5 × 0, 4 × 0, 0। नेक्स्ट कॉलम 1 × 0, 0 × 0 प्लस 0 × 0, 0। नेक्स्ट कॉलम 4 × 0 प्लस 1 × 0 प्लस 0। इस तरह से zj के सारे कॉलम की वैल्यू 0 आ गई। ठीक, अब आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ zj वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cj माइनस zj। अब cj माइनस zj ऊपर देखिए, सबसे ऊपर ये cj की वैल्यूज हैं, ठीक है ना, ये सारी cj की वैल्यूज हैं जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। तो इन cj में से हमें जो zj वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए zj की पहली वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग है 0, तो 3 माइनस 0 3। दूसरी 5 माइनस 0 5, 4 माइनस 0 4, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट की है ये लिख दिया मैंने, ठीक, ये रखी है, ठीक, 3 माइनस 0 3, 5 माइनस 0 5, 4 माइनस 0 4, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। अब हमें क्या करना है कि इस जो हमने cj माइनस zj की वैल्यू निकाली है उसमें से हमें फाइंड करना है सबसे मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू। हाँ, जो cj माइनस zj निकालना है, हमें इस तरह की टेबल तब तक फॉर्म करना है जब तक कि ये cj माइनस zj की सारी वैल्यूज आइदर 0 या नेगेटिव ना हो जाए। We have to find the value of cj minus zj until the value of these cj minus zj will become either 0 or negative। ठीक, जब तक 0 या नेगेटिव ना हो जाए तब तक हम इस तरह की टेबल और ये प्रोसेस हम करते रहेंगे। तो सबसे पहले जब हम अभी इसको देखिए, इसमें तीनों के तीनों पॉजिटिव है और ये सबसे मोस्ट पॉजिटिव है 5, तो हम जो सबसे मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है उस वैल्यू को ले लेंगे। ठीक, जो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है उस कॉलम को हमने ये सिलेक्ट कर लिया।
ये है। तो जो ये कॉलम है ये हमारा कहलाता है पाइवोटल कॉलम। दिस इज कॉल्ड आर पाइवोटल कॉलम और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड की कॉलम। ठीक, ये हमारे पास की कॉलम भी हम इसी को बोलते हैं। अब क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू नाउ, बाय द की कॉलम वी विल डिवाइड द वैल्यू ऑफ एक्स बी। एक्स बी की वैल्यू को हम की कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। ठीक, देखिए एक्स बी है, यहाँ पर 8 है, 8 के करस्पॉन्डिंग 3, हमने ये 8/3, 10 है 2, 10/2 5, 15/2, ये हमारे पास ये आ गया। देखिए अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास की कॉलम आया था उसमें वेरिएबल था हमारे पास x2। जो ये x2 है वो कहलाता है हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल। x2 विल बी कॉल्ड एंटरिंग वेरिएबल। ठीक, मतलब कि ये हमारा वेरिएबल एंटर करेगा कहां पर। अब हम जहां पर भी एंटर करेगा उसकी वैल्यू कहां से निकालेंगे, किस रो में, जो हमने ये रेशियो निकाला है। तो हमने यहां पर रेशियो निकाले हैं 8/3, 10/2, 15/2। इस रेशियो में से जो मिनिमम वैल्यू है उस रो को हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो हमारा बन जाएगा पाइवोटल रो। ठीक, ये हमारे पास जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड आर पाइवोटल रो। देखिए जो इसमें से मिनिमम वैल्यू है 8/3 में 2.66 आएगा, 10/2 में 5 आएगा, 15/2 में 7.5 आएगा। तो जिसमें जो सबसे मिनिमम रेशियो होता है उसके सामने की रो कहलाएगी हमारे पास पाइवोटल रो। ठीक, द मिनिमम रेशियो हैज रो इज कॉल्ड योर पाइवोटल रो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड की रो, इसी को की रो भी बोलते हैं। तो जो हमारे पास रो में जो सामने वेरिएबल आएगा दैट इज S1, दिस वेरिएबल विल कॉल्ड एग्जिट वेरिएबल। यहाँ पर देखिए जो की कॉलम में था दैट विल बी कॉल्ड x2 is your entering variable and the ratio has minimum and the value of this row is variable is called your exit variable। तो यहाँ पर S1 हटेगा, S1 हमारा बाहर जाएगा, उसकी जगह आएगा x2 और x2 में वैल्यू है इसकी ये 5, तो ये CB की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 5। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, एग्जिट वेरिएबल, एंटरिंग वेरिएबल। अब जो अगली टेबल बनेगी तो वहां पर ये S1 है, S1 की जगह x2 और 0 की जगह 5 आएगा। ठीक, आगे जहां पर वेयर द रो एंड की कॉलम इंटरसेक्ट, where the pivotal row and pivotal column intersect with each other, that element is called your pivotal element or key element। जिस एलिमेंट पर पाइवोटल रो और पाइवोटल कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं, यहां पर कौन सा, ये 3 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट एलिमेंट विल बी कॉल्ड योर की एलिमेंट। देखिए मैंने की एलिमेंट, आई हैव रिटन इट सेपरेट, मैंने इसको सेपरेट लिखा हुआ है। योर 3 इज योर की एलिमेंट। इतनी चीजें इस एक टेबल में हमें पता चल गई। अब हमें क्या करना है कि जो अगली टेबल बनाएंगे तो उसमें से इस की एलिमेंट का, जिसमें की एलिमेंट है उस की एलिमेंट से हम पूरी इस रो को, जो पाइवोटल रो है उसको डिवाइड कर देंगे और जो बाकी की 2 बची हुई रो हैं उनको एक फॉर्मूले के जरिए हम चेंज करेंगे। ठीक, तो लेट अस सी कैसे चेंज करेंगे। हमने ये किया दूसरा, देखिए जो हमारे पास पहला यहां पर S1 था, S1 में हमारा x2 एंटरिंग वेरिएबल था, तो हमने यहां पर x2 लिख दिया। यहां पर CB की वैल्यू 0 थी और x2 की वैल्यू 5, तो हमने चूंकि ये हमारा एंटरिंग वेरिएबल था तो हमने यहां पर x2 की वैल्यू 5 लिख दिया। अब आगे हमने कहा था कि जो हमारे पास की एलिमेंट या पाइवोटल एलिमेंट है उससे हम उस पूरी रो को डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ये यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 0। तो इस पूरी रो में हम 3 से डिवाइड करेंगे। देखिए R1 हमारी पहली रो
से, R1 मान लीजिए फर्स्ट रो है आपकी, तो इसका फॉर्मूला हम क्या बना दिए, ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई की एलिमेंट। ठीक, तो देखिए इस फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या आ जाएंगे, 8/3, 2/3, 3/3 दैट इज इक्वल टू 1, 0/3 इक्वल टू 0, 1/3, 0/3 इक्वल टू 0 एंड 0/3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी जो पहली रो थी 8/3, 2/3, 1, 0, 1/3, 0 एंड 0, ये आपका आ गया। अब जो बाकी की रो बचती हैं, जो बचेंगी रो R2 एंड R3, फॉर दीज रिमेनिंग टू रो वी हैव अ फार्मूला फॉर दीज टू रो। कौन सी, देखिए R2 के लिए ओल्ड वैल्यू, दोनों के लिए फार्मूला लगेगा, मैं एक बार बता दे रहा हूं, ओल्ड वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू इन पाइवोटल कॉलम इनटू न्यू वैल्यू इन पाइवोटल रो। ठीक है ना, ओल्ड वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू इन पाइवोटल कॉलम इनटू न्यू वैल्यू इन पाइवोटल रो। अब देखिएगा न्यू वैल्यू आपकी ये वाली है, ठीक, इस रो की, और जो आपका प्रीवियस पाइवोटल कॉलम वैल्यू है, हम पीछे से एक बार देख ले रहे हैं कौन सा है, ये है आपका, देखिए प्रीवियस वैल्यू इन पाइवोटल कॉलम है 2। ठीक, तो हमारे पास ये 2 तो सबके लिए रहेगा। अब नई वैल्यू हम वहां से देख लेंगे, पुरानी वैल्यू एक बार यहां से देख लेते हैं, 10, 0, 2, 5, 0, 1, 0, 10, 0, 2, 5, 0, 1, 0। तो अब हम इसको यहां पर देख रहे हैं, जो R2 आएगा 10, पहली वैल्यू 10 माइनस ये ओल्ड वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू इन पाइवोटल कॉलम दैट वाज 2 इनटू न्यू वैल्यू इन पाइवोटल रो। तो हमारे पास ये है 8/3, तो 10 माइनस 2 इंटू 8/3 दैट इज इक्वल टू 14/3, तो हमने ये लिख दिया 14/3। सिमिलरली फॉर द सेकंड एलिमेंट दैट वाज दिस माइनस 4/3, तो यहाँ पर ओल्ड वैल्यू थी 0 माइनस प्रीवियस कॉलम वैल्यू थी यहाँ पर पाइवोटल कॉलम की 2 इंटू 2/3 दैट इज न्यू वैल्यू इन पाइवोटल रो दैट वाज 2/3, तो 0 माइनस 2 इंटू 2/3 दैट इज इक्वल टू माइनस का 4/3। सिमिलरली ऐसे ही थर्ड के लिए ओल्ड वैल्यू 2 माइनस प्रीवियस वैल्यू इन पाइवोटल कॉलम दैट इज 2 into new value in pivotal row that is 1, so 2 minus 2 into 1 that will become 0. For the next 5 old value minus previous pivotal value 2 into new value in pivotal row that is 0, so 5 minus 2 into 0 that will become 5. Next 0 into minus 0 minus 2 into 1/3, so that will come minus 2/3. The next one is 1 minus 2 into 0 equal to 1, and the last is 0 minus 2 into 0 that is equal to 0. तो हमारे पास ये R2 की पूरी रो आ गई। सिमिलरली दिस प्रोसेस विल बी ऑल्सो अप्लाई इन R3, मतलब कि इसके लिए भी हम यही चीज अप्लाई करेंगे। ठीक, तो अब हमने यहाँ पर देखिए मैंने R3 की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करके सीधा डायरेक्ट रख दिया है, 15 minus 2 into 8/3 that will become 29/3. The next value is 5/3. Next 0, 4 minus 2/3, 0 and 1. तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 29/3, 5/3, 0, 4 minus 2/3, 0 and 1। अब ये हमारे पास R1, R2 और R3 आ गए। Now what we have to do? Now again we will find the value of Zj की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे, फिर भाई पहले देखिए यहाँ पर 0 था, तो सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर क्या 0 0 0 आ गई थी, लेकिन नाउ हियर इज 5, अब यहाँ पर 5 है, तो अब यहाँ पर 0 0 नहीं आएगा। अब कैसे, 5 इंटू 8/3 प्लस 0 इंटू 14/3 प्लस 0 इंटू 29/3, तो दैट विल बिकम 40/3। देखिए मैंने यहाँ पर इसको आगे सॉल्व किया है, ये Zj की वैल्यू ये रही 5 इंटू 8/3 प्लस 0 इंटू 14/3 प्लस 0 इंटू 29/3, the value will come of Zj 40/3. For the second column 5 इंटू 2/3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 दैट इज 10/3। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है 10/3, ये रहा। ठीक, देखिए सिमिलरली अगली वैल्यूज क्या है, 5, 0,
5/3 0 0 5 0 5/3 0 0। देखिए मैंने यहाँ पर ये निकाला है, ठीक, 5 0 5 एंड 0 0, ठीक। अब ये वैल्यू मैंने निकाल दिया। अगेन अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये 5/3 इसकी वजह से आ रहा है, 5 इंटू 1/3 0 और ये अब हम क्या करेंगे, जो हमने जड़जे निकाला है उसको सीजे माइनस जड़जे निकालना है। सीजे मतलब 3 माइनस 10/3, तो 3 माइनस 10/3 व्हाट विल बिकम, माइनस का 1/3, 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 0 4, 0 माइनस 5/3 माइनस 5/3, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। अगेन वी विल सी दैट, अगेन हम यहाँ पर देखेंगे कि सारी वैल्यू जीरो या नेगेटिव हो गई है या कोई पॉजिटिव वैल्यू है। तो देखिए नेगेटिव 0 नेगेटिव 0 0, लेकिन ये 4 अभी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू बची हुई है, ठीक। तो जो ये 4 पॉजिटिव वैल्यू बची है तो हम इसको अगेन लेंगे, इसके सामने वाला पूरा कॉलम हमारा बन जाएगा पाइवोटल कॉलम। ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक, ये हमारा है पाइवोटल कॉलम। तो अब जो हमारा अगला एंटरिंग वेरिएबल होगा वो होगा x3। x3 हमारा एंटरिंग वेरिएबल है। जब ये एंटरिंग वेरिएबल है तो अब इसकी जगह एग्जिट कौन होगा, तो एग्जिट निकालने के लिए अगेन वही क्या, मिनिमम रेशियो निकालेंगे, एक्स बी डिवाइडेड बाई की कॉलम के वैल्यू, ठीक। तो देखिएगा हमारे पास 8/3 डिवाइडेड बाई 0, तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, मतलब कि अनडिफाइंड, बहुत ज्यादा। तो हमारे पास ये हमने इसको छोड़ दिया। अगेन 14/3 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आएगा 14/15, 29/3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा 29/3/4, तो 29/12। तो अब हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 0.93 और इसकी वैल्यू आएगी 2 पॉइंट लगभग 4, ठीक। तो इसका मतलब कि ये वाली वैल्यूज हमारे पास, ये जो दूसरे रो का रेशियो है ये मिनिमम है हमारे पास, ठीक, इस रो का रेशियो मिनिमम है। तो अब हमारे पास जो एग्जिट वेरिएबल होगा वो होगा x2, ये s2 वेरिएबल एग्जिट होगा, और किसकी जगह, इसकी जगह क्या आएगा x3, ये आएगा x3, ठीक। तो जब हम अगली टेबल बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ s2 की जगह x3 और इसकी जो वैल्यू 4 है वो आएगी यहाँ पर, ठीक। तो हम चलते हैं अब अगली टेबल में। नेक्स्ट टेबल है हमारे पास ये, ठीक, ये रही। अब हमने क्या किया, देखिए इस S2 को X3 से हमने रिप्लेस कर दिया, क्यों कि S2 हमारा एग्जिट वेरिएबल था और X3 हमारा एंटरिंग वेरिएबल था। अब हमें क्या करना है कि जो पीछे हमने किया था ना, क्या हमने पीछे किया था कि जो हमारे पास इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब कि ये 5, इस 5 से हम इस पूरी रो को डिवाइड कर देंगे, इस 5 से इस पूरी रो को डिवाइड कर देंगे, और जो हमारे पास ये वैल्यू R3 बची है उसको हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये फॉर्मूला था R2 ओल्ड वाला, इससे हम इसको चेंज कर देंगे, ठीक। तो हम क्या करते हैं, देखें इस x3 की वैल्यू हमारे पास 4 थी, हमने ये वैल्यू यहां पर रख दिया। अब हमारे पास जो की एलिमेंट था क्या था 5, तो 5 से हम इस पूरी रो को डिवाइड कर देंगे, किसको, इस वाली रो को, ठीक। तो देखिए मैंने यहां पर इसको कैलकुलेट किया हुआ है R2 डिवाइडेड बाई की एलिमेंट। तो देखिए 14/3 डिवाइडेड बाई 5, 14/15, minus 4/3 divided by 5, that is minus 4/15, 0/5 divided by 0, 5/5 1, minus 2/3/5, that is minus 2/5,
15 एंड 1/5 एंड 0। ठीक, तो ये मैंने यहाँ पर एक ये रो लिख दिया। अब जो अगली रो है उसको क्या करना है हमें, पुराना फॉर्मूला वही, कौन सा, ओल्ड वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू इन पाइवोटल कॉलम इनटू, ये यहाँ पर याद रखिएगा इनटू है, इनटू न्यू वैल्यू इन पाइवोटल रो। ठीक, तो मैं एक वैल्यू अभी बता रहा हूं, इसके बाद में सारी वैसे बता देंगे। देखिए पुरानी वैल्यू थी 29/3, ठीक, और इसके करस्पॉन्डिंग है 29/3, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू है प्रीवियस में 4। ठीक, तो 29/3 माइनस 4। ठीक, अब इसके करस्पॉन्डिंग जो नई वैल्यू आएगी कहां पर, यहां पर क्या है, 1 है, सॉरी यहाँ पर ये है जो वैल्यू यहाँ पर आएगी। ठीक, तो देखिएगा ओल्ड वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू इन पाइवोटल कॉलम इनटू न्यू वैल्यू इन पाइवोटल रो, तो 29/3 माइनस 4 और इनटू में यहां पर जो वैल्यू होगी, तो देखिए ये क्या है, ये 14/15 है वैल्यू। ठीक, तो यहां पर जो वैल्यू है 14/15, देखिए ये रहा नई वैल्यू, तो 29/3 माइनस 4 इंटू 14/15, तो कितना आ गया 89/15। ठीक, ये 89/15। सिमिलरली इस वाले के लिए भी, अगले के लिए 5/3 ओल्ड वैल्यू माइनस 4 इंटू माइनस 4/15, ये आपकी वैल्यू थी, देखिए ये न्यू वैल्यू थी आपके उसमें, तो हमारे पास यहाँ गया 41/15। नेक्स्ट वैल्यू 0 माइनस 4 इंटू 0 0, फिर 4 माइनस 4 इंटू 1 दैट इज 0। ऐसे ही सारी वैल्यूज हमने लिख लिया, तो हमारे पास जो R3 था वो क्या बन गया, ये वैल्यू R3 क्या आ गई 89/15, 41/15, 0 0 माइनस 2/15 माइनस 4/15 एंड 1। अब अगेन अब हम क्या करना है कि हमें ZJ की वैल्यू निकालना है। ठीक, तो ZJ की वैल्यू फिर वही कैसे, 5 इंटू 8/3 प्लस 4 इंटू 14/15 प्लस 0 इंटू 89/15। तो अब जब हम इन तीनों का सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 256/15। ठीक, हमारे पास आ जाएगा 256/15 जैसे पीछे किया था। अब यहां पर क्या करेंगे, 5 इंटू 2/3 प्लस 4 इंटू माइनस 4/15 प्लस 0 इंटू 41/15, तो ये आएगा हमारे पास 11/15। यहां से देखिए 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 दैट इज 5, फिर यहाँ से 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 4, 5 इंटू 1/3 प्लस 4 इंटू माइनस 2/15 प्लस 0 इंटू माइनस 2/15, वैल्यू विल बिकम 17/15. Here 5 into 0, 4 into 1/5, 0 into minus 4/5, the value will become 4/5. And here 5 into 0, 4 into 0, 0 into 1, that is 0. तो ये आ गई ZJ की वैल्यू। After getting the value of ZJ, we will find the value of CJ minus ZJ. CJ minus ZJ की वैल्यू हम निकालेंगे। तो देखिए 3 माइनस 11/15, 3 माइनस 11/15, यहां पर देखिएगा ये x1 वाले कॉलम के लिए 3 माइनस 11/15 दैट विल बिकम 34/15। कैसे, 15 3 जब 45, 45 में से 11 चले जाएगा तो 34, 34 में से बटे हमारे पास 15 ये बच जाएगा। ठीक, अगेन सिमिलरली दूसरे वाले के लिए फॉर x2 5 माइनस 5 0, x3 वाले कॉलम के लिए 4 माइनस 4 0, s1 वाले कॉलम के लिए 0 माइनस 17/15 दैट इज माइनस 17/15, s2 वाले कॉलम के लिए माइनस 4/5 और s2 वाले कॉलम के लिए, s3 वाले कॉलम के लिए 0 माइनस 0। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे वैल्यूज ये लिख दिया है, CJ माइनस ZJ 34/15, 0 0 माइनस 17/15 माइनस 4/15 एंड 0। नाउ अब यहाँ पर देखिए क्या जो वैल्यूज आई है CJ माइनस ZJ क्या सभी नेगेटिव या जीरो हैं। यहां से देखिए 0 माइनस 4/15 माइनस 17/15 0 0, बट हियर दिस वैल्यू
44/15 ये वैल्यू अभी पॉजिटिव है, ये एरो लगा है ना ये वाली, ये वैल्यू अभी पॉजिटिव है। तो अब जो हमारा इसके सामने का कॉलम होगा वो कहलाएगा पाइवोटल कॉलम, और इसमें जो वेरिएबल होगा वो कहलाएगा एंटरिंग वेरिएबल। एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होगा? x1। ये हमारे पास x1 एंटरिंग वेरिएबल है। ठीक, आगे बात करते हैं। अब जब एंटरिंग वेरिएबल है तो एग्जिट वेरिएबल कौन सा होगा? उसके लिए जो xb की वैल्यू है उसमें से हम जो की कॉलम है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो देखिए जब हम डिवाइड करेंगे तो 8/3 डिवाइडेड बाई 2/3 4, 14/15 माइनस 4/15, तो ये आएगा माइनस का 3.5। बट x1 x2 हम हमेशा बताए थे कि ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक, तो ये हमारे पास ये माइनस में है तो नॉट पॉसिबल, इसको हटा दिया। फिर 89/15 और 41/15, तो ये आएगा 89/41 जिसकी वैल्यू आएगी 2.17। तो ये हमारे पास है क्या? सबसे मिनिमम रेशियो इसमें से तीनों में से। तो हमने क्या किया, इसके सामने की रो हो गई हमारे पास पाइवोटल रो या की रो इसी को बोलते हैं। ठीक, और जब ये की रो हो गया तो इसके सामने का जो वेरिएबल है S3 वो कहलाएगा एग्जिट वेरिएबल। ठीक, तो एग्जिट वेरिएबल हमारे पास कौन सा आ गया? S3, और एंटरिंग वेरिएबल है x1। तो x1 हम कहां पर लिखेंगे अब? S3 की जगह। इसकी वैल्यू कितनी है? 3 हमारे पास ये वैल्यू। तो जो अगली टेबल बनाएंगे हम उसमें हम क्या करेंगे कि इसकी जगह x1 रखेंगे, यहाँ पर 3, और जो बाकी की प्रोसेस है सिमिलर वही। कैसे? जहां पर की कॉलम और जो की रो का इंटरसेक्शन पॉइंट है कहां पर है? इस 41/15 पर। इस 41/15 से इस पूरी रो को, कौन सी रो? जो हमारे पास R3 है, मतलब कि ये वाली रो, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। किससे? 41/15 से। ठीक, और फिर बाकी जो x2 और x3 हैं उनके लिए सिमिलर वही प्रोसेस, जो फॉर्मूला लगाए थे R2 ओल्ड वाला, ओल्ड वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू इन पाइवोटल कॉलम इनटू न्यू वैल्यू इन पाइवोटल रो, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए, तो अब जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो किस तरह से आएगी? ये आ रही, देखिए हमने क्या किया, R3 ओल्ड डिवाइडेड बाई की एलिमेंट, तो 89/15 डिवाइडेड बाई 41/15। ये हमारे पास 41/15 की एलिमेंट था और ये हमारे पास ओल्ड वैल्यू है, तो हमारे पास क्या आ गया? 89/41, ये रही वैल्यू। ठीक, और हमारे पास जो यहाँ पर S3 था, यहाँ पर S3 था, यहाँ पर क्या आ गया? x1, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर एंटर आ गई। इसकी जो वैल्यू है 3 हमने वो यहाँ पर लिख दिया। ठीक, तो देखिए हमारे पास तीनों वेरिएबल रिप्लेस हो गए। सिमिलरली जो हमारे पास यहाँ पर x1 में क्या था? 41/15 जो कि हमारा की एलिमेंट था, तो की एलिमेंट से हम उसको की एलिमेंट से ही डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी हमारे पास 1। ऐसे ही इस वाले कॉलम के लिए हमारे पास -4/5/41/15, तो वैल्यू आ जाएगी -12/41। लास्ट वाले कॉलम के लिए 1/41/15, तो वैल्यू आ जाएगी 15/41। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई R3 वाली रो की। ठीक, अब हमें क्या करना है, जो x2 और x3 वाले, मतलब कि R1 और R2, फर्स्ट रो और सेकंड रो, इसको भी चेंज करना है। कैसे? वही पुरानी प्रोसेस, फॉर्मूला दैट इज, मतलब कि ओल्ड वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू इन पाइवोटल कॉलम इनटू न्यू वैल्यू इन पाइवोटल रो। ठीक, तो देखिए हम एक बता रहे हैं उसके बाद आप समझ जाइएगा। प्रीवियस वैल्यू दैट इज 8/3 माइनस 2/3 इंटू 89/41, ये हो गई आपकी ओल्ड वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू इन पाइवोटल कॉलम देखिए 2/3,
ये कहां से, यहां से देखिएगा, ए तीसरे वाले में ये रही प्रीवियस वैल्यू इन पाइवोटल कॉलम 2/3, ये सबके इस वाली रो के लिए सबके लिए यही रहेगा, और जो नई वैल्यू है वो इस वाली रो से ली जाएगी जो हम उसे लास्ट टेबल में लिखे थे। ठीक, तो वही चीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं, 8/3 माइनस 2/3 इंटू 89/41, ये नई वैल्यू है। तो क्या आ जाएगा, 8/3 माइनस 2 इंटू 89 दैट इज 178/3 इंटू 41। तो इसका 3 इंटू 41 का हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ पर आ गया 328 माइनस 178 दैट इज इक्वल टू 150/3 इंटू 41 एंड दैट विल बी इक्वल टू 50/41। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है 50/41, ये रही आपकी वो वैल्यू। ठीक, एक्स वाला इसको देखिए, जीरो वाला हमने कैसे कैलकुलेट किया, जीरो वाले के लिए देख लीजिए, ये रहा x1 वाले कॉलम के 2/3 माइनस 2/3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 0। फिर x2 वाले कॉलम के लिए 1 माइनस 2/3 इंटू 0 1। x3 वाले कॉलम के लिए ये r1 की वैल्यू से निकल रही है पहली रो के लिए, 0 माइनस 2/3 इंटू 0 0। s1 वाले कॉलम के लिए 1/3 माइनस 2/3 इंटू माइनस का 2/41, तो दिस विल बिकम 15/41। S2 कॉलम के लिए सिमिलरली 8/41 एंड फॉर S3 कॉलम दैट इज माइनस 10/41। तो देखिए क्या बन गया, देखिएगा 50/41, 0 1 0, 15/41, 8/41 और माइनस का 10/41। तो ये रहा कॉलम, देखिए 15/41, 0 1 0, 15/41, 8/41 और माइनस का 10/41। ये आपका हो गया R1। सिमिलरली अब जो हमारे पास R2 है, अब R2 के लिए भी हम सिमिलरली यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। ठीक, मैंने यहां पर देखिए सिमिलरली लिख दिया है, सिमिलरली फॉर R2 ओल्ड माइनस प्रीवियस वैल्यू इन पाइवोटल कॉलम दैट वाज माइनस 4/15 इंटू R3 न्यू। ठीक, तो देखिए 14/15 माइनस 4/15 इंटू 89/41 R2 ओल्ड। अब देखिएगा R2 ओल्ड यहां से देखिएगा, R2 ओल्ड रही आपकी ये 14/15 और इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रीवियस वैल्यू इन कॉलम है ये है माइनस का 4/15। तो ये सबके लिए यही रहेगा इस पूरी रो के लिए, और जो इसकी नई वैल्यूज हैं वो हम कहां से लेंगे, वो आएंगी इस यहाँ वाली इस रो से। ठीक, तो देखिए अब हम इसको यहाँ पर ये कर रहे हैं, माइनस 4/15 तो सब में रहेगा, अब ये नई वाली वहां से आ गई, तो 14/15 माइनस 4/15 4/15 इंटू 18, तो दिस विल बिकम 62/41 फर्स्ट वैल्यू। सिमिलरली द सेकंड वैल्यू माइनस 4/15 माइनस 4/15 माइनस का इंटू 1, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस पूरा कैंसिल तो 0। फिर यहाँ पर 0 माइनस 4/5 इंटू 0 तो 0, फिर 1 माइनस 4/5 माइनस 4/5, ये 0 का इसका प्लस हो जाएगा और इंटू 0 रहेगा तो ये 0 हो जाएगा इतना वाला पूरा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का 2/15 माइनस 4/15 इंटू माइनस 2/41। ठीक, तो ये आ जाएगा माइनस का 6/41। सिमिलरली यहाँ पर द वैल्यू विल बिकम 5/41 एंड लास्ट वैल्यू इज 4/41। तो देखिए R3 के लिए वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से देखिए क्या 62/41 0 0 1 माइनस 6/41 5/41 एंड 4/41। तो ये वैल्यूज आ गई। तो अब हमने ये वैल्यूज हमने रख दिया यहाँ पर। ठीक, ये रखी है वैल्यू देखिए। ठीक, ये हमने सारी की सारी वैल्यूज रख दिया, यहां से आप चेक कीजिए। R2 वाले के लिए 62/41 0 0 1
-6/41, 5/41 और 4/41। यही वैल्यूज आपने यहाँ पर ये फाइंड करी थी R2 के लिए। देखिए 62/41, 0, 0, 1, -6/41, 5/41 और 4/41, ये वैल्यूज निकल करके आ गई आपकी। अब अगेन हमको क्या करना है कि इस टेबल में ZJ निकालना है, ठीक। तो ZJ का मतलब 5 इंटू दिस कितना 50/41, 4 इंटू 62/41, 3 इंटू 89/41। तो हम यहाँ पर इसको ये निकालना है। देखिए 5 इंटू 50/41 प्लस 4 इंटू 62/41 प्लस 3 इंटू 89/41, ठीक। तो 5 इंटू 50 दैट इज 250/41, 4 into 62 that is 248 divided by 41, 3 into 89/41 so that is 267 divided by 41. So value of all these, this will become 765 divided by 41. तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास ये वैल्यू आई है 6, ये 765 डिवाइडेड बाई 41, इसका 5 इंटू 50/41, 4 इंटू 62/41, 3 इंटू 89/41, ठीक। अब यहाँ से 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, तो ये वैल्यू आएगी 3। जनरली यहाँ से 5 इंटू 1, 4 इंटू 0, 3 इंटू 0, तो कितनी आ गई 5। फिर यहाँ से 5 इंटू 0, 4 इंटू 1 और 3 इंटू 0 तो 4। यहाँ से 5 इंटू 15/41, 4 इंटू -6/41, 3 इंटू -2/41, तो इसकी वैल्यू आएगी 45/41। फिर यहाँ से 5 इंटू 8/41, 4 इंटू 5/41, 3 इंटू -12/41, तो वैल्यू विल बिकम 24/41। फिर यहाँ से 5 इंटू -10/41 प्लस 4 इंटू 4/41 प्लस 3 इंटू 15/41, तो वैल्यू विल बिकम 11/41। नाउ अब हमने यहाँ पर ZJ की वैल्यू निकाल लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ अगेन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ CJ माइनस ZJ। अब हम CJ माइनस ZJ की वैल्यू निकालेंगे। तो CJ माइनस ZJ की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए CJ दैट इज 3, यहाँ पर ZJ की वैल्यू 3, तो 3 माइनस 3 0, अगेन 5 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 45/41, तो माइनस का 45/41, 0 minus 24/41, so it will become minus 24/41. Now here 0 minus 11/41, so minus का 11/41. Now we will see that all these values of CJ minus ZJ should be either 0 or negative. If there would be any positive value, we will again repeat the previous process. मतलब कि अब हम यहाँ पर देखेंगे CJ माइनस ZJ की सारी वैल्यू 0 या नेगेटिव हो गई है कि नहीं। अगर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव है तो हम फिर से यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो देखिए 0 ओके, 0 ओके, 0 ओके, -40/41 दिस इज नेगेटिव है, -24/41 नेगेटिव है, -11/41 नेगेटिव है। नाउ तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ऑल द वैल्यूज ऑफ CJ minus ZJ or either 0 or negative. So we can say that this is our optimal solution. इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल है, ठीक, क्योंकि सभी वैल्यूज 0 या नेगेटिव हो गई हैं। या कहीं कहीं पर किसी बुक में ZJ माइनस CJ निकालते हैं तो ये सारी वैल्यू पॉजिटिव या 0 होती, ठीक। तो जो वैल्यू नेगेटिव में आती तो हम उनको फिर पॉजिटिव करते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव में है क्योंकि CJ माइनस ZJ लिया है तो हम इसको 0 और नेगेटिव करना है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रोसेस दिया हुआ है। तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x1, x2 एंड x3। तो यहाँ पर देखिए x1 की वैल्यू है 89/41, x2 की वैल्यू है 15/41 एंड x3 की वैल्यू है 62/41. So these are the values of x1, x2 and x3. And what is the
our objective function which has maximum. So the value of objective function is that is 765 upon 41. जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है दिस. अब देखिए भाई यहाँ पर आगे लिख रहा हूं, द वैल्यू ऑफ x1 इज 89 अपॉन 41 and the value of x2 is 50 upon 41, the value of x3 is 62 upon 41 and the objective function that is max z is 765 upon 41. ठीक, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था जिसको हमें मैक्सिमाइज करना था, जिसको हमने सिंप्लेक्स मेथड के जरिए सॉल्व किया है. तो ये हमारा जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है उसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन है. अब इसमें एक एक स्टेप को मैंने डिफाइन करके क्लियर कर दिया है. देखिएगा लास्ट टेबल जो है, इस टेबल जब यहां पर होंगे आप और जो ये वैल्यूज आएंगी ये वाली रो, इस वाली रो में, तब सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी. जब आप यहां तक निकाल लेते हैं इतनी चीज, अगर ये आपका यहां तक आ गया तो फिर आपको ये मान के चलिए कि आपने 100% न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है. फिर आपको उसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है. अगर आप रफली वर्क कर रहे हैं तो आप यहीं से एक आइडिया लग जाएगा कि आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया है. ठीक, तो ये रहा आपका सिंपलेस्ट मेथड. नाउ अब हमें यहाँ पर जो मिनिमम रेशियो निकालने की जरूरत होती थी, ठीक, चूंकि सिंस हियर ऑल द वैल्यूज ऑफ Cj माइनस Zj आर आइदर नेगेटिव और जीरो, सो हियर नो नीड टू फाइंड द मिनिमम रेशियो. क्योंकि हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया है, इस वजह से हमें यहाँ पर अब मिनिमम रेशियो निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं रह गई है. जब मिनिमम रेशियो निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं रह गई है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे. ठीक, अगर हमारे पास Cj माइनस Zj कोई भी वैल्यू पॉजिटिव होता तो हम फिर क्या करते, वही इसमें से वो एक कॉलम लेते और फिर उसके करस्पॉन्डिंग हम पाइवोटल रो निकालते और उसमें फिर हम मिनिमम रेशियो निकालते. लेकिन since here all the values are fine, so we will close our solution. तो ये हमारा हो गया एक सिंप्लेक्स मेथड का मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन. अब अगर यहां तक किसी की समझ में कोई चीज ना आई हो तो पूछ सकता है. और रिकॉर्डिंग बंद कर दें. दिस इज आवर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ सिंप्लेक्स मेथड ऑफ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम.